Sharing my screen. Perfect. So thank you everyone for taking out the time for coming today. So we are doing 4 sessions. Today will be Excel, VBA, doubt session and recap. Tomorrow we'll be working on Power BI. 1 day's visualization, 1 day is Power Query and DAX, and then 1 day we'll be working on Tableau, right? I also want to take 1 minute telling you what all we have covered so far. So if you see, 75 hours, 1 moment. Right. So we have already covered Excel. We have spent a lot of time on it. I did some of the lectures, Talha did some of the lecture. You have also done VBA. Now see, VBA obviously is a difficult topic, not just for you, for everyone else. So you can't expect कि 5 hours में आप VBA के expert बन जाएंगे. But you should feel very happy that you have started. You know, let me tell you, there are so many people in the corporate who I train. You know what I do, right? Who want to work on VBA, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं करा. Let me tell you where I was today. So I was at an event. We were the consulting partner. So this event is called Sabera, right? What you see in the background here. So we were the consulting partner. This is Suparna Chadda, who was the host. She's the organizer and the owner of the event. This is the 7th edition. This is India's largest social and business responsibility awards, right? And the point is, if you look at these people, we had George Muthoot. All of you have heard of Muthoot Finance, no? He's the managing director of the entire group, and it's a very large company. Talha, you have already met. Then we had Renu Sood. Renu Sood was head of HDFC. Now she is the chairman of GSK. GSK has brands like Sensodyne, Iotex. Then we had Kanika, who's the South Asia head for Unilever for corporate responsibility. So my point is, there were all these people, and trust me, the discussion we were having, yahi tha that, you know, I want my team to learn Visual Basic, to learn programming, to learn Power BI, to learn more advanced Excel. So literally what we have taught you, me and Talha, same areas is what we spoke about in these one-to-one discussions also. Uske baad, you have done Power BI. Power BI में भी both Talha and I have done the session, and I think we have done quite a lot. तो आपको visual पता है, tooltip, formatting, interface. Talha has also covered for you ETL, how to combine multiple files, how to clean the data, promote the header, unpivot, joins, right? And a little bit of DAX. DAX is obviously for data modeling, which I had covered for you, the profit margin, right? Tableau, maybe we have seen Tableau is very similar to Power BI. Interface alag hai, but at the same time, they are both competitors, right? This weekend, we'll be starting with PowerPoint. So I'll just share with you what the plan is. Because I was not able to take out time on weekends, that's why I thought, at least let me meet you, you know, in these 4 days. So इस weekend पे, which is 9th and 10th, Talha will be taking you through PowerPoint. मैं आपसे मिलूंगा on the 16th, right? So my plan is 16th को, 24th को and 30th को. I'll be doing the sessions for you. तो मेरे साथ आप 3 hours, फिर 24th को 4 hours and 30th को 3 hours spend करेंगे. So we have a lot of time. In those sessions, मैं आपका recap भी कराऊंगा सारे topics का. I will connect all the topics. Plus जो भी आपके doubts हैं, queries हैं, मेरे से जो आपको notes चाहिए, help चाहिए, we'll be sharing all of that, right? So this is the plan that we have. But in इस weekend पे, the 2 days, Talha will be covering PowerPoint for you, right? Okay. So we have come a very long way. एक बार recap करते हैं. So let me open my folder. Excel 2024. I'll keep it on my desktop. All right. Now see, सबसे पहले recap तो I'll cover, right? वो तो आप YouTube पे भी देख सकते हैं. In fact,
I want to show you something because ये आपके लिए relevant है. I'll tell you what I was working on today. अभी complete नहीं हुआ है, but मतलब it will hopefully get completed in a couple of days. See what I've done. To make your life a lot easier, what I'm doing is I'm making a PowerPoint. Now you know मेरे पास YouTube पे बहुत videos हैं. There are over 1400 videos. To be honest with you, मुझे कई बार याद नहीं रहता कौन सा वीडियो कहाँ पे है, right? How is it possible? For example, मुझे नहीं याद था that I've already covered workshops for IIM Ahmedabad, Bangalore and Calcutta. मतलब मुझे कुछ कुछ याद था, I did not exactly remember. So when I saw my old videos, I realized कि मैंने किया हुआ है. तो what I've done is, अपने लिए भी और mostly आपके लिए, what I've done is मैंने ये बनाना शुरू किया. So what is it? सबसे पहले वीडियो का थंबनेल, ChatGPT plus Python no code. अब वीडियो देख के, इमेज देख के आपको एक आइडिया लगेगा इसमें क्या कवर्ड है, राइट? बट यू विल से बट सर ये तो इमेज है ना, मतलब आपने एक्चुअली में क्या कराया है? सो इफ यू नोटिस मैंने यहाँ पे लिखा है दिस वेबिनार प्रोवाइड्स इंट्रोडक्शन टू यूजिंग जेनरेटिव एआई, ChatGPT, Python in a no code environment. You will learn Python, ETL, data visualization and clustering. आपके टेकअवेज क्या होंगे? You will learn ETL, you will know why understanding Python is important and how generative AI tools are going to change the way we work. And the link has been given. तो आपको उस वीडियो पे जाना है. You can just click on the link. It will directly take you to that video. अब इसका फायदा क्या है? एक तो you have a order कि आपको पता है कि आप पहले कौन सा वीडियो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, फिर कौन सा वाला, राइट? ऑल्सो लाइक इफ यू आर इन फाइनेंस तो प्रॉब्ली आप पहले व्हाट इफ देखना चाहेंगे, उसके बाद बाकी देखना चाहेंगे. ऑल्सो बिफोर वॉचिंग द वीडियो यू ऑलरेडी हैव अ समरी. इस तरीके से तो आपको पता है उस वीडियो में क्या कवर होने वाला है. सो यू कैन डिसाइड. सो इफ यू आर इन HR, इफ यू आर इन मार्केटिंग, आपका इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे कि ये वाला जो वीडियो है गोल से एक डेटा टेबल सॉल्वर, वेरिएबल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? बिकॉज हर एक चीज हर एक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड टू डू. कंप्लीट नहीं है. दिस इज एक्सेल, ChatGPT, प्रेजेंटेशन का हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ. प्लीज, एंड आई सी मेनी ऑफ यू डू इट ऑन लिंक्डइन. तो आप देखेंगे दिस इज एन एंटायर सेशन दैट आई कंडक्टेड जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो. वन इज ऑन जेस्ट्रॉल प्रिंसिपल, देन इज ऑन रेफरेंस लाइन. पूरा पावर पॉइंट का कोर्स है एंड कंसल्टिंग चार्ट्स. उसके बाद पावर बीआई वर्सेस टैबलो. अब आपने दोनों कर लिया, पावर बीआई एंड टैबलो दोनों. ऑल्सो यू माइट बी क्यूरियस कि सर आप हमें तो ये पढ़ाते हैं बट EY में क्या कराते हैं? सो इफ यू सी दिस, I had done a session for EY on Power BI. छोटा सा सेशन था 1 आवर का. बट इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा, जो हमें सिखाया जा रहा है यही कॉर्पोरेट में भी होता है, करेक्ट? तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि कल अगर आपसे कोई कहेगा दैट यू हैव डन अ 75-hour कोर्स, सो व्हाट हैव यू स्टडीड? नाउ यू कैन टेल देम दैट वी हैव एक्चुअली लर्नड द सेम थिंग that has been taught at EY. You have that confidence, right? Then I've also done it for, अभी like I said complete नहीं है, but जैसे these are B school के session. IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta Analytics, Calcutta Excel, SP Jain, IIFT, LSR, SRCC के 2 सेशंस हैं. एक्सेल में भी मैंने स्टार्ट किया है. तो वन इज ऑन पावर क्वेरी, पावर पिवट, वन इज ऑन डायनामिक अरे. और जो भी मेरे प्लेलिस्ट हैं वो तो इंडिविजुअल वीडियोस थे, बट देयर आर प्लेलिस्ट व्हिच आर कंप्लीट कोर्सेस. यहाँ पे इफ यू सी मैंने ऐसे डाला है, तो लाइक दिस इज अ प्लेलिस्ट ऑन डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन. So there are about 30 videos in it, 39 video. You click on the link. आपके पास पूरा playlist है which opens up. Also, if you want to know what is in that playlist before you do it, तो मैंने आपको already यहाँ पे लिख के दिया हुआ है. Complete नहीं हुआ है, but I've at least started it. Data cleaning है, pivot tables है, VLOOKUP है, Excel charts है. Similarly, VBA का, Power Query का, right? So my plan is to complete it so that this will help you, right? कि आप वापस जाके when you are trying to learn after my classes are over, तो आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा. You know, everything you need will be in one place. So is this helpful, everyone? Can you confirm? Because I've been spending a lot of time on it. Will this help you after the classes are over? Nisha, thank you. Perfect. ठीक है. तो why, Yashika, thank you. See, why I wanted to spend time discussing that is because, of course, मैं आज recap कराऊंगा.
पर देखो रिकैप तो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो, मेरे सारे वीडियोस हैं, मैंने जितना आपको कराया है क्लासेस में उससे ज्यादा इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। कहां पे है वो भी मैंने आपको दे दिया। सो बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि एक्सेल में एरियाज होते क्या है। प्रैक्टिस देखिए आप ही को करना है, मैं आपको जितने भी रिकैप सेशंस करा दूंगा एट द एंड ऑफ द डे यू ओनली हैव टू प्रैक्टिस। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच यू हैव टू लर्न। सबसे पहले आपका आता है डेटा क्लीनिंग। वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स। डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनेजमेंट, डेटा प्रेपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेटा ही क्लीन नहीं है तो आप पावर बीआई, टैबलो, पिवट टेबल, फॉर्मूलाज, चार्ट्स कुछ भी नहीं बना सकते, राइट? सो डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीवन, राइट? उसके बाद वी कम टू डेटा एंट्री एंड वैलिडेशन। इसमें है डेटा टाइप, कस्टम फॉर्मेट की रुपी है, करेंसी है, टेक्स्ट है, डेट है, टाइम है। इसमें आएगा डेटा वैलिडेशन। सो इफ यू रिमेंबर एक सेल में ड्रॉप डाउन है टू गेट 3 वैल्यू लाइक अ लो, मीडियम, हाई। देन वी हैव function is sumif, countif, count all. Then we have basic shortcuts, right? In fact order में आपको करा, तो सबसे पहले है shortcuts because how to use control shift arrow is very important. फिर है आपका data cleaning, left right mid flash fill. फिर है आपका data entry and validation which is dollar sign data type. फिर है आपका function which is count all, countif, sumif. Conditional statement में है if and or. Then you have VLOOKUP. VLOOKUP is a very boring topic, but it is a very important topic. VLOOKUP में you learn how to search for a data. For example, if I want to search for the current share price of Tata Motors, तो मैं कहाँ देखूंगा? I'll have to do a VLOOKUP because I'm searching for a unique value, right? Then of course we have pivot table, which is for dashboard. जो भी आपका डेटा है, if you want to analyze it, you want to visualize it, तो आप कैसे करेंगे? pivot table. Now you might say, but sir, अब तो Power BI है, Tableau है, तो pivot table की क्या जरूरत है? But see, that is the point. Power BI अभी आया है, few years back. Tableau also has become popular in the last 10-12 years. उससे पहले क्या था? For the last 40 years, we have been using pivot table, correct? तो pivot table is still a very, very important topic. Yes, Power BI, Tableau is also very important, but आप Excel को इग्नोर मत करिए। आपका जर्नी एक्सेल से स्टार्ट होगा, आपका मेन फोकस एक्सेल पे होना चाहिए। तो लाइक 60% एक्सेल, 20% पावर बीआई, 10% पावर पॉइंट, जेनरेटिव है, 10% पाइथन, समथिंग लाइक दैट। बट आपका सबसे ज्यादा फोकस फ्रॉम अ जॉब पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन एमबीए पर्सपेक्टिव हैज टू बी ऑन एक्सेल। आप इंटरव्यू में जाके ये बोलोगे मुझे पावर बीआई बहुत अच्छा आता है, एक्सेल नहीं आता, कोई फायदा नहीं है। लेट मी टेल यू, आप बोलेंगे मुझे एक्सेल बहुत आता है, पावर बीआई जर्नी आपने शुरू करा है, दैट इज गुड, राइट? इवन इफ यू से पावर बीआई स्टार्ट नहीं करा वो भी चलेगा, बट एक्सेल इज द ब्रेड एंड बटर। एक्सेल के बिना आप कुछ और सीख ही नहीं सकते, कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? बिकॉज पावर बीआई, टैब्लो में भी विच डेटा आर यू अपलोडिंग एन एक्सेल फाइल, इजंट इट? ऑलराइट, ओके, सो वी डू अ क्विक रिकैप। नेविगेशन में सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज रेज योर हैंड, यूज द चैट विंडो, राइट? सो आई ऑल्सो मेंशन in case of any questions. Raise hand, use chat, or unmute yourself, right? Anyone. Okay, सबसे पहले we come to navigation. सबसे पहले we have control F1, control shift F1. क्या फायदा है? आपके पास कोई डेटा है and if you want to work faster, right? Because डेटा काफी बड़ा है, तो you can press control F1. उससे क्या होगा? If you see, जो आपका रिबन है वो हाइड हो जाएगा like this. कंट्रोल शिफ्ट F1 से आपका पूरा रिबन हाइड हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। सो द शॉर्टकट इज कंट्रोल F1, कंट्रोल फंक्शन शिफ्ट F1। सारे शीट्स का आपको लिस्ट देखना है, यू कैन डू अ राइट क्लिक। सो इफ आई डू अ राइट क्लिक आई कैन सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द शीट्स। ये बहुत सिंपल है। कंट्रोल पेज अप, पेज डाउन विल टेक यू टू द नेक्स्ट शीट एंड टू द प्रीवियस शीट। Control up, down, left, right will take you from the first cell to the last cell. So control up, down, left and right like that. वैसे ही अगर आप कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो यू आर सेलेक्टिंग। कंट्रोल शिफ्ट से आई एम सेलेक्टिंग द एंटायर कॉलम, राइट? ऑल द वैल्यूज
but not just jumping, I'm also selecting at the same time. और शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार से आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा. कंट्रोल इज फॉर द कॉलम एंड शिफ्ट स्पेस बार इज फॉर द रो. इसमें देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, बट प्रैक्टिस करना है आपको, राइट? ओके, उसके बाद वी हैव सॉर्ट एंड फिल्टर. ये भी आपको पता है. टू अप्लाई अ फिल्टर आई विल गो टू व्यू एंड सेलेक्ट, आई एम सॉरी, टू डेटा एंड सेलेक्ट माई फिल्टर ऑप्शन. आपके पास अलग अलग फिल्टर्स हैं. ये आपके टेक्स्ट के फिल्टर्स हैं जिसमें आपके पास ऑप्शंस हैं इक्वल, एंड, विथ, कंटेन्स. These are your number filters, right? And these are your date filters, like this. So you can see every year, quarter, month, and date. Remember, जो आपके data type होगा, the filter will change automatically, right? ठीक है? This is navigation. उसके बाद we will come to data entry and validation. This is again very simple. सबसे पहले you have to understand data types. नाउ डेटा टाइप इज अबाउट रिपोर्टिंग, कि आप कोई भी अपना रिपोर्ट बनाते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, क्लाइंट, मैनेजर, एनी रिपोर्ट, यू हैव टू डिसाइड कि फॉर्मेट क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया में दिखा रहा हूं तो INR, यूएस में होगा तो डॉलर. टाइम जोन्स माइट ऑल्सो चेंज. यूएस में 4 टाइम जोन्स होते हैं. सो यू हैव टू कीप दोज फैक्टर्स इन माइंड. 2 डेसिमल होंगे, 5 डेसिमल होंगे, करेक्ट? सो इफ यू लुक एट दिस वेबसाइट ऑन मनी कंट्रोल, आप देखेंगे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं. डेट का फॉर्मेट, नंबर का फॉर्मेट, परसेंटेज का फॉर्मेट, राइट? यहां पे भी इफ यू सी व्हाट इज द फॉर्मेट, 0.05, मतलब देर आर 2 डेसिमल प्लेसेस. यहां पे भी क्या है, देर आर 6 नंबर्स बट 2 नंबर्स हैव बीन हिडन फ्रॉम द यूजर. ये आपके डिफॉल्ट फॉर्मेट्स हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, टेक्स्ट, परसेंटेज, एटसेट्रा. बट यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट कस्टम फॉर्मेट. ये मेनली काम आता है व्हेन यू आर वर्किंग विद डेट, DMY. इसी के बीच में यू कैन मिक्स इट अप, कि अगर आपको डेट चाहिए, डे चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ नेम चाहिए, ईयर चाहिए, तो यू कैन मिक्स इट अप. ये सेम आपका पावर BI और टैब्लो में भी होता है, सारे सॉफ्टवेयर में होता है, राइट? तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स कि यू कैन कंट्रोल कि आपका डेटा कैसे दिखेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट? हाउ विल इट बी, क्या कलर होगा, वहां पे क्या कैरेक्टर आएगा, सब कुछ मेरे नोट्स में है. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट वन बाय वन, राइट? देन वी कम टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन का बेस्ट एग्जांपल इज टू लुक एट अ बुकिंग वेबसाइट. अब तो खैर विस्तारा नहीं रहा, बट लेट्स से एयर इंडिया, राइट? नाउ इफ यू लुक एट द वैलिडेशन, वैलिडेशन मीन्स यू आर गिविंग द यूजर अ रेस्ट्रिक्शन. जैसे मैं आपसे कहता हूं मुझे जवाब चाहिए यस, नो या मे बी, और इफ आई आस्क यू गिव मी अ रेटिंग ऑफ 1 to 5, मतलब 1 2 3 4 5 ही होगा. 1.5 भी नहीं हो सकता, 0.5 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता. दिस इज अ वैलिडेशन, विच मीन्स इट्स अ कंस्ट्रेंट दैट यू हैव केप्ट, राइट? तो यहां पे क्या वैलिडेशन है, 3 ऑप्शंस इन ट्रैवल क्लास में, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी एंड बिजनेस. वैसे ही डिपार्चर डेट अराइवल से पहले नहीं हो सकता. नंबर ऑफ पैसेंजर्स 10 से ज्यादा नहीं हो सकते. अगर इन्फेंट ट्रैवल करेगा तो पेरेंट भी होना चाहिए. तो ये अलग अलग वैलिडेशन है, राइट? कैसे करते हैं एक्सेल में, यू गो टू डेटा एंड देन डेटा वैलिडेशन. तो वैलिडेशन में यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स. आप बोल सकते हैं कि सिर्फ नंबर है, सिर्फ डेट है, डेसिमल है, एटसेट्रा. इसमें यू आर ऑल्सो अलाउड टू कीप फॉर्मूला. ये थोड़ा एडवांस्ड है, बट इफ यू नोटिस आई कैन ऑल्सो पुट अ फॉर्मूला. जैसे यहां पे क्या कह रहे हैं, इट सेज द थर्ड वन दैट जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, इट हैज टू बी अ मोबाइल नंबर, मतलब 10 डिजिट्स. इट ऑल्सो शुड स्टार्ट विद 9. तो इफ यू नोटिस, लेफ्ट इज 9, मतलब पहला कैरेक्टर विल बी 9. उसका लेंथ होगा एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स एंड इट हैज टू बी अ नंबर फॉर्मेट. तो गलती से अगर किसी ने 0 के बजाय O डाल दिया, इट विल नॉट एक्सेप्ट इट, राइट? ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये सारा आप चैट जीपीटी में बना सकते हैं, राइट? दिस इज योर वैलिडेशन. उसके बाद वी कम टू रेफरेंसिंग. रेफरेंसिंग बेसिकली इज अ डॉलर साइन. लॉजिक इज, या तो आप फॉर्मूला लिखेंगे विदाउट अ डॉलर साइन. सिंपल, मैंने लिखा B2 डिवाइडेड बाय C2 और ड्रैग कर दिया, करेक्ट, प्रॉब्लम ही नहीं है.
बट ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है. दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि हर एक चीज रिलेटिव है, राइट? आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो सब बदलेगा. देन यू हैव एब्सोल्यूट, विच मीन्स कि आपको एक सेल को लॉक कर रहा है. दैट मीन्स आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई एवरी वैल्यू विथ 5%. सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम अप्लाइंग अ डॉलर साइन, $f, $2, विच मीन्स कि F2 ही रहेगा एज आई कॉपी द फॉर्मूला डाउन. डॉलर साइन लगाने का शॉर्टकट इज F4. डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप F4 भी हो सकता है, फंक्शन F4 भी हो सकता है. उसके बाद वी हैव मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग. इसमें क्या होता है? कॉलम पे डॉलर आता है और रो पे डॉलर आता है. सो इफ यू नोटिस, मेरे कॉलम बी फर्स्ट कॉलम पे डॉलर आएगा और रो नंबर 4 फर्स्ट रो पे डॉलर आएगा. तो $C5 इंटू D$4. ये सारा प्रैक्टिस करके यू विल अंडरस्टैंड, राइट? तो इसमें मैंने अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए, आप वापस जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्लीज रिमेंबर, डॉलर साइन इज स्पेसिफिक टू एक्सेल एंड गूगल शीट. पाइथन और पावर बीआई में डॉलर साइन नहीं होता, और अगर होता भी है उसका मीनिंग अलग होता है. तो जो डॉलर साइन रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्सेल एंड गूगल शीट्स, राइट? देन वी कम टू डेटा क्लियरिंग. डेटा क्लियरिंग में सबसे पहले वी सॉ दैट वी हैव फ्लैश फिल. वेरी सिंपल, मेरा पहला टॉपिक था. आपके पास कोई भी डेटा है, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा बट अ सर्टेन पैटर्न. फॉर एग्जांपल, मुझे TCFUR में से सिर्फ पहले 3 लेटर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एक सैंपल देखिए, आई विल प्रेस Ctrl E. वैसे अगर आपको नाम को अलग करना है वो भी कर सकते हैं. बीच में ब्लैंक कॉलम अलाउड नहीं है. लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में काम करेगा. 2 कॉलम्स पे एक साथ काम नहीं करेगा. फॉर्मूला पे भी काम नहीं करेगा. इट विल ओनली वर्क विद वैल्यू जो आपने टाइप करा है. सैंपल जनरली हम पहले रो से डालते हैं, बट इट कैन कम फ्रॉम एनी अदर रो ऑल्सो. हेडिंग नहीं भी होगा तो चलेगा, अगर हेडिंग में एटलीस्ट कोई कलर या फॉर्मेट है, बट आइडियली देयर शुड बी अ हेडिंग. सिर्फ एक कॉलम पे मल्टीपल रोज पे काम करेगा. इट विल नॉट वर्क इन वन रो. ब्लैंक होगा तो रुक जाएगा, बट इफ यू सेलेक्ट द एंटायर रेंज तो वो उतने रेंज पे काम करेगा. और अगर 2 कॉलम्स हैं, FUR, तो वो जनरली पहला वाला कॉलम उठाएगा. अगर आपको दूसरा वाला कॉलम चाहिए तो आपको सैंपल बदलना पड़ेगा, राइट? हिडन कॉलम है तो काम नहीं करेगा. इट कैन ऑल्सो चेंज द केस, अपर केस, लोअर केस, मिक्स्ड केस. नंबर टेक्स्ट को सेपरेट भी कर सकता है. मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज भी कर सकता है, लाइक अ कंकैटिनेट. और अगर आपका डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारे वेरिएशन है, कहीं पे अंडरस्कोर है, कहीं पे डैश है, इट कैन ऑल्सो वर्क, बट आपको एटलीस्ट 2 सैंपल देने पड़ेंगे. हो सकता है कई बार 3-4 भी देने पड़े, बट जनरली 2-3-4 में हो जाता है, राइट? देन वी डिड फॉर्मूला. नाउ व्हाई वी लर्निंग फॉर्मूला इफ फ्लैश फिल इज सच अ ग्रेट फीचर? सी, फ्लैश फिल इज अ फैंटास्टिक फीचर. आई यूज इट, आई थिंक, एवरी डे. बट फ्लैश फिल इज नॉट डायनामिक. दैट मीन्स कि अगर आपका इनपुट बदलेगा तो फ्लैश फिल विल नॉट चेंज द आउटपुट, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग इज, आई विल हैव टू यूज फॉर्मूला बिकॉज फॉर्मूलाज आर डायनामिक. तो सबसे पहले है लेफ्ट राइट मिड. लेफ्ट आपका लेफ्ट से आता है, राइट राइट से आता है, मिड मिडिल से आता है. और ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं आप चैट जीपीटी में लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला भी लिखा है एंड आई हैव रिटन द प्रॉम्प्ट. फॉर एग्जांपल, 3 एक्सेल formulas, B5 has this value, break into 3 part. सिंपल, वो आपको फॉर्मूला लिख दे देगा. मैंने ये भी दिखाया पाइथन में कैसे होता है. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इन केस यू आर क्यूरियस, इट इज अवेलेबल हियर ऑल्सो. उसके बाद इफ यू वांट टू सेपरेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उसमें होगा लेफ्ट राइट मिड फाइंड एंड लेंथ. ये भी आपका चैट जीपीटी में काम करेगा. राइट एक्सेल फॉर्मूला, आई हैव अ नेम, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. वेरी सिंपल. मिडिल नेम के लिए आई हैव गिवन यू वीडियोस दैट यू कैन वॉच. देन वी कम टू कंकैटिनेट. कंकैटिनेट में वी आर मर्जिंग मल्टीपल सेल. तो अगर आपको 3 कॉलम्स को ज्वाइन करना है तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास. है कंकैटिनेट, फिर है आपका कंकैट, फिर है आपका टेक्सचर. थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप मल्टीपल सेल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं. ट्रिम इज वेरी सिंपल. जो भी आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, वर्ड्स से पहले, वर्ड्स के बीच में या वर्ड के बाद, इट विल रिमूव ऑल द स्पेसेस.
देन वी हैव सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉट को अंडरस्कोर बनाना चाहते हैं। रिप्लेस कुछ कैरेक्टर्स को बदलेगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूंगा लास्ट के 3 कैरेक्टर्स को बदलना है, तो वो उन्हीं 3 कैरेक्टर्स को बदलेगा। दैट मीन्स इफ आई टेल इट कि TCFUROFF 3 ऑप्शंस हैं, तीनों को TC बनाना है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट काम नहीं करेगा। वहां पे TC कैसे करेगा? यूजिंग रिप्लेस फंक्शन लाइक दिस। देन वी हैव कार। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इस पे भी इतना जाएंगे नहीं। कार एंड कोड आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दीज आर एडवांस टॉपिक्स, वेरी एडवांस टॉपिक्स। फिर आप तक आता है राउंड फंक्शन। राउंड का पर्पसेस, आप नंबर को राउंड करना चाहते हैं। दैट मीन्स 5.6 क्या बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए, या 6 बनना चाहिए? उसके लिए 3 फंक्शंस हैं। वी हैव राउंड, राउंड डाउन एंड राउंड अप। Then I've also given you many more very advanced topics. So if you notice, this is a very, very advanced formula, how to find the last word. Basically, how to switch the first name, last name, how to extract the numbers, right? So basically, my point is that आपके पास प्लेलिस्ट भी है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट आई हैव कवर्ड फॉर यू। क्योंकि इतना तो हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी नहीं कराते हैं, राइट? तो डोंट फील कि सर, like should I do every example? No, you should not do every example, and I've been telling you this every time. मैं जो आपको बता रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेफ्ट, राइट, मिड, फाइंड, लेंथ, कंकैटिनेट, ट्रिम, राउंड, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे ऑप्शनल हैं, आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, बट बेसिक वाले फंक्शन सीखने के बाद, राइट? Okay, so we have done navigation, data entry, data cleaning. Now let's come to functions. Functions are also very simple. Functions में हमारे पास है सबसे पहले एरर्स। ये भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में कितने एरर्स होते हैं और क्यों होते हैं। मेरा इनफैक्ट यूट्यूब पे एक वीडियो भी है ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, राइट? मैं आपको ये नहीं कराऊंगा बिकॉज थोड़ा होमवर्क आपको भी करना चाहिए, राइट? और ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। बट यू शुड फील कि एज अ स्टूडेंट आपने एक कोर्स अटेंड करा है, राइट? तो आपको ये आना चाहिए। इफ समवन आस्क यू व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एरर्स इन एक्सेल, तो आपको फट से पता होना चाहिए नेम एरर, REF, DIV0, NA। सारे नहीं, बट एटलीस्ट जो मेन वाले आपके एरर्स हैं, राइट? ओके, फंक्शंस क्या है हमारे? सबसे पहले है काउंट। काउंट विल काउंट नंबर्स। काउंट ए विल काउंट नंबर इन टेक्स्ट बोथ। यूनिक क्या करेगा? आपको यूनिक लिस्ट बना के देगा। बट रिमेंबर, यूनिक इज ओनली अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365। पुराने एक्सेल वर्जन पे अवेलेबल नहीं होगा, राइट? पर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन फ्री वर्जन में भी काम करता है, राइट? फिर आता है काउंटिफ। काउंटिफ मतलब योर काउंटिंग विद अ कंडीशन कि कॉलम वी में अलग अलग रिस्क हैं, बट मुझे सिर्फ वेरी हाई काउंट करना है, तो वहां पे काउंटिफ आएगा। वैसे काउंटिफिस मतलब 2 और मोर देन 2 कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, in column we want to look at high risk, and in column S, we want a return of more than 10%, like that. SUMIF, COUNTIF बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है? SUMIF में रेंज है, क्राइटेरिया है, एंड देयर इज अ सम रेंज, राइट? वैसे SUMIFS में देयर आर 2 और मोर देन 2 कंडीशंस। वैसे आपका एवरेज इफेस, मैक्स इफेस, मिन इफेस भी होता है। देयर आर 5 ऑप्शन: सम, काउंट, एवरेज, मैक्स एंड मिन। पर 99% आपका सम और काउंट यूज होता है, राइट? देन वी हैव इफ एरर कि अगर आपके डेटा में एरर है या आपके फॉर्मूला की वजह से एरर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लास्ट ईयर का वैल्यू है ही नहीं, तो ऑब्वियसली दे विल बी एन एरर। हाउ डू आई अवॉइड दैट एरर? बाय लाइक दिस एरर, हाउ डू आई अवॉइड इट? बाय यूजिंग इफ एरर। और ये सारे फॉर्मूलाज में काम करता है। दिस वन वी कैन इग्नोर द काउंट एंड ऑल, राइट? ये आप बाद में देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? काउंट, काउंट ए, यूनिक, काउंट इफ, सम इफ एरर। 6 फंक्शंस, राइट? Now let's come to conditional statements. Okay. Let me open the PowerPoint.
सो इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स द पर्पस इज कि कोई कंडीशन है विच कैन ईदर गिव यू अ ट्रू वैल्यू और अ फॉल्स वैल्यू. अगर मल्टीपल रिजल्ट्स हैं तो आपको एक से ज्यादा इफ लगाना पड़ेगा. बट द बेसिक इफ सेज दैट देयर इज वन लॉजिकल टेस्ट जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा. वेरी सिंपल. अगर टारगेट अचीव हुआ है तो आंसर इज यस, अदरवाइज नो. लाइक दिस. वेरी सिंपल. चैट जीपीटी का भी मैंने आपको लिख के दिया है, तो यू हैव द प्रॉम्प्ट, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट. एंड का मतलब है अगर दो से ज्यादा कंडीशन है, दो या दो से ज्यादा. एंड में यू कैन पुट अप टू 255 कंडीशन. एंड में एक और एंड या और आ सकता है. ऑर्डर डज नॉट मैटर. एवरी कंडीशन मस्ट बी मेट. मतलब अगर आपने 10 कंडीशंस डाले हैं तो 10 के 10 मिलने चाहिए. ऐसा नहीं कि 9 हो गए और एक नहीं हुआ. लाइक यहां पे वी आर सेइंग अचीवमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट एंड द कस्टमर शुड बी अ प्राइम कस्टमर. देन वी हैव और मतलब एटलीस्ट वन. राइट. नेस्टेड इफ का यूज है अगर आपके दो से ज्यादा रिजल्ट है. फॉर एग्जाम्पल अबव, मेट, बिलो. तो अगर मेरा अचीवमेंट टारगेट से ज्यादा है तो अबव, बराबर है तो मेट, बिलो है तो बिलो टारगेट. इफ एस सिर्फ नए वाले एक्सेल में अवेलेबल है. इफ एस इज जस्ट लाइक इफ. बट इसमें फायदा है कि आपको इफ एस एक ही बार लिखना होता है. दे आर ऑलमोस्ट द सेम. डिफरेंस इज दैट ये सिर्फ नए वाले एक्सेल में अवेलेबल है. देन यू ऑल्सो हैव इफ विथ एंड एंड और. ये सारा आपका चैट जीपीटी में हो जाएगा. तो मैंने आपको प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, यहां पे आपको प्रॉम्प्ट भी लिखा है, सो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट. अगर आपको फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मूला टू मी. राइट. देन आई हैव गिवन यू मेनी मोर एडवांस प्रॉब्लम्स दैट यू कैन डू, ये वाले. बट ये अभी जरूरी नहीं है. आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज जो मैंने आपको कराया, बेसिक इफ एंड और. राइट. आई हैव आल्सो शोन यू हाउ टू डू दिस ऑन पाइथन इफ यू वांट. Then we come to VLOOKUP. VLOOKUP again is a very, I mean, the function is only one function. VLOOKUP, index match, इतना ही है. बट इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी. तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूं. बट प्लीज कीप इन माइंड दैट यू कैन डू मोर एग्जाम्पल्स इफ यू वांट. Pranav, did you raise your hand? Did you want to ask something? I mean, your name popped on the screen. I'm not sure why. Okay, all right. ठीक है. सबसे पहले समझते हैं VLOOKUP का पर्पस क्या है. VLOOKUP का पर्पस है आपके पास एक डेटाबेस है. राइट. सो इफ यू नोटिस आई हैव नेम ऑफ द बैंक, स्टेट, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड द नंबर ऑफ स्टाफ. वेरी सिंपल. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक बैंक के वैल्यू को ढूंढना है. अब या तो आप मैन्युअली ढूंढेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे या फिर फिल्टर लगाएंगे. बट यू सी द पॉइंट, नो. मतलब ये तो मैन्युअल हो गया. ये हर बार थोड़ी आप करेंगे. अगर 10,000 नाम होते तो आप कैसे ढूंढते हैं. दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ VLOOKUP. तो VLOOKUP क्या करेगा, हरियाणा को ढूंढेगा फर्स्ट कॉलम में, कॉलम ई, और थर्ड कॉलम नंबर ऑफ ब्रांचेस से आपको रिजल्ट निकाल के देगा. राइट. VLOOKUP में बहुत सारे वेरिएशन है कि आप पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस. फर्स्ट का मतलब एग्जैक्ट मैच. अप्रोक्सीमेट कब होता है, जब आपका नंबर सर्च करना होता है. फॉर एग्जाम्पल 102% को आप एग्जैक्टली नहीं ढूंढ सकते हैं बिटवीन 0 एंड 100 एंड 105. But we know it is in between 100 and 105, right? Then you have fuzzy match. This is a bonus topic. आपको देखना है तो you can watch the video. Then we have approximate match with array. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. If error आप कर ही चुके हैं. फिर हमने किया था how to work with two different sheets. तो एक में आपका डेटा है, एक में आपका फॉर्मूला है. तो यहां पे क्या होगा, वेरी सिंपल. मैं लिखूंगा B3. कहां पे ढूंढ रहे हैं, डेटाबेस शीट में. तो डेटाबेस का नाम आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, कौन सा कॉलम है, C:U, लाइक दैट. राइट. बस इतना ही है. उसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स हैं. VLOOKUP विथ मैच फंक्शन, इंडेक्स मैच. बट दीज आर टॉपिक्स जो आप सीखते हैं आफ्टर 2, 3, 4 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. आई एम नॉट सेइंग आपको सीखना नहीं चाहिए, पर सबसे पहले यू हैव टू गेट थरो ऑन द बेसिक्स. आपको लगेगा से ये तो बहुत ईजी है. ऐसा नहीं है ना. आपको बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करना है. एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. सो बिफोर यू गो टू द एडवांस टॉपिक, सबसे पहले यू शुड डू द बेसिक टॉपिक्स. राइट. तो मैंने आपको जितना कराया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. VLOOKUP with $, with the column, if error,
and we look up on a different sheet, right? बाकी सारा is advanced content. आप करना चाहें कर सकते हैं. All the notes, all the videos are there. Then we come to pivot tables. Pivot में भी पूरा playlist आपके पास available है. Basic idea of pivot is what कि वो आपके डेटा को summarize करता है और आप visualize कर सकते हैं. That means I will go to insert and make a pivot table. In the pivot table, 4 options है, filter, column, rows and values. तो अगर मैंने सेल्स को वैल्यू में डाला, सब कैटेगरी को रोज में डाला, इट टेल्स मी हर एक सब कैटेगरी का कितना सेल्स है. कैटेगरी को कॉलम्स में डाल देंगे तो ऐसे आएगा, शिफ्ट करके रोज में रखेंगे तो ऐसे आएगा. सो बेसिकली कुछ करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, यू कैन मिक्स एंड मैच जैसे आपको चाहिए. फिल्टर में रखेंगे तो आई विल गेट अ फिल्टर लाइक दिस. ऐसे ही आई कैन मेक अ स्लाइसर. सो पिवट टेबल में आई कैन मेक अ स्लाइसर for my segment and my market like this. तो now I can decide मुझे किस segment या market का data देखना है. और chart बनाने के लिए I can again go and make a chart. Simple insert. अलग अलग टाइप के charts हैं, तलहा आपको ऑलरेडी करा चुका है. यहाँ पे I can make a basic chart. And the best part is ये सारा आपका dynamic है. That means अगर मैं market change करूंगा, segment change करूंगा तो आपका chart table दोनों change होगा. फिर आते हैं कैलकुलेशन. राइट क्लिक करने से समराइज में आपके पास है सम, काउंट, एवरेज, मैक्स एंड मिन. बेसिकली सम एफ, काउंट एफ, एवरेज एफ, मैक्स एफ, मिन एफ, सेम टॉपिक. शो वैल्यू में अभी सिलेक्टेड है नो कैलकुलेशन, बट यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन. सो वी कैन हैव ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल, रो टोटल. कॉलम करने से परसेंटेज बन जाएगा. इफ आई चेंज इट टू रनिंग टोटल तो वो आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू दिखाएगा. वैसे ही अगर आप करेंगे परसेंटेज रनिंग तो वो आपको परसेंटेज दिखाएगा. आप करेंगे रैंक तो वो आपको रैंक दिखाएगा. बेसिकली ये तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस वन बाय वन, ट्राई एवरी सिंगल ऑप्शन. जहां पे भी यू गेट स्टक यू कैन डू एन ऑनलाइन सर्च, राइट. बेसिक पिवट का कॉन्सेप्ट यही है. फिर बहुत सारी चीजें हैं जैसे पावर पिवट है, पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं, आपके पास फील्ड सेटिंग्स हैं, यू हैव ओलैप टू. बट जो मैंने आपको कराया है दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, राइट. प्लीज रिमेंबर पिवट का भी आई हैव एन एंटायर कोर्स अवेलेबल. आपके पास ऑलरेडी फोल्डर्स अवेलेबल हैं. दिस इज द प्लेलिस्ट ऑन पिवट टेबल. ये सेम टॉपिक्स हैं विच आई कवर इन माय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एज वेल, राइट. ओके, चार्ट्स भी तला आपको ऑलरेडी करा चुका है, सो आई नॉट कवर इट अगेन. इसका भी पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट. प्लस मैं जब आपसे मिलूंगा तो आई विल कवर मोर ऑफ दिस टॉपिक. फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचा वर्क विद डेट. हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, स्वयं हाउ टू गेट टू नो व्हाट वी डोंट नो. दैट्स द आंसर. नो वन नोस, क्योंकि देयर इज नथिंग करेक्ट और इनकरेक्ट. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा. तो यू हैव टू मिक्स एंड मैच. आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप ही को डिसाइड करना है विच इज द बेस्ट ऑप्शन. बट एज सच कुछ करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होता, बिकॉज डेटा तो आप ही का डेटा है. whatever you're getting is a correct value. ऐसा नहीं है that the calculation will be wrong. So that is just experimentation and experience that you will have to use, right? मुझे भी नहीं पता for that matter. आप मुझे अगर कोई नया डेटा लाके देंगे, बोलेंगे सर कैन यू मेक अ पिवट टेबल, मुझे भी ऐसा नहीं कि पहली बारी में आई नो what is the best way to present. I will also have to try different combinations to find the best option, right? Okay. Now dates, if you remember, I had discussed this with you, is very, very difficult because of multiple format, time zone, country, region, date, day, month, year, financial year. There are so many reasons why it's a problem. अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं. तो डेट पे सबसे पहले डेट का कॉन्सेप्ट क्या है? 1 जनवरी 1900 इज 1. मतलब 2 जनवरी 2 आज होगा 45,400 समथिंग, बिकॉज इट इज 45,000 days आफ्टर द 1st of January. फिर आपका आता है डेट फॉर्मेट. तो यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट, डी, टीडी, एमएम, वाई, एमएमएम. तो अलग अलग फॉर्मेट्स बन के आएंगे. टाइम 1 है, मतलब 1 day इज 1. तो एक दो बार जब क्लॉक घूमेगा 24 hours इज 1. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है.
फंक्शंस में आपके पास डेट है जो आपको ईयर मंथ और डे को कंबाइन करके एक डेट बनाता है. लाइक टुडे विल बी 2024 11/4, तो वो बन जाएगा 4 नवंबर 2024. उसके बाद है वर्क डे, मतलब दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना है तो आप करेंगे नेट वर्क डे, मतलब नेट नंबर ऑफ वर्किंग डे, सैटरडे संडे हटा के. और अगर आपको डेडलाइन निकालना है, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं प्लीज गिव मी योर प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट इन 12 वर्किंग डेज. थिंक अबाउट इट. प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट इन 12 वर्किंग डे. अब 12 वर्किंग डे आप कैसे निकालेंगे? बिकॉज अगर आप +12 करेंगे तो वो तो 16 आएगा, करेक्ट. बट उसमें 8, उसमें 9 10 15 16 नहीं आना चाहिए, बिकॉज दे आर सैटरडे संडे. वहां पे होता है वर्क डे विच इज वर्किंग डे. नेट वर्क डेज दो डेट्स का डिफरेंस है. ई डेट मतलब एक्सपायरी डेट. किसी भी प्रोडक्ट, वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग डेट अगर आपके पास अवेलेबल है एंड यू वुड लाइक टू नो द एंड डेट, एक्सपायरी डेट, तो आप करते हैं ई डेट. फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. ईओ मंथ थोड़ा कम यूजफुल है बट इट इज वेरी यूजफुल इन इट्स ओन वे. एंड ऑफ मंथ. एंड ऑफ मंथ 4 नवंबर का क्या होगा? 30 नवंबर. एंड ऑफ मंथ (1) मतलब 31 दिसंबर. और एंड ऑफ मंथ -1 मतलब पिछले महीने का 31 अक्टूबर, राइट. फिर ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, डेट डिफ है, राइट, ये आप कर सकते हैं. बट मेन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉर्मेटिंग समझना कि डेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, विच इज दिस वन, कि डेट का कॉन्सेप्ट क्या है, वाई इज इट ए नंबर, अलग अलग फॉर्मेट्स. उसके बाद डेट इंपॉर्टेंट है. फिर आपका ये मैंने लिखे हुए डे मंथ ईयर, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है. वर्क डे इंपॉर्टेंट है और आपका नेटवर्क डे इंपॉर्टेंट है. बाकी सारा इज एडिशनल टॉपिक, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट. ऑब्वियसली अगर आपको करना है, पूरा प्लेलिस्ट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ओके, नेक्स्ट. We have covered everything. Now let me just do VBA very quickly. See, VBA का भी, like I said, पूरा course is there. Of course, it is a tough topic because it is supposed to be difficult. It is not. It is programming after all, right? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना है तो एफर्ट, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, राइट. बट द बेसिक आइडिया ऑफ VBA इज कि आपको कोई भी टास्क अगर ऑटोमेट करना है, यू कैन यूज विजुअल बेसिक. दैट मीन्स, प्लीज हैव अ लुक. जैसे कि राइट नाउ मेरे पास है डेवलपर टैब. रिमेंबर, इसको आपको एनेबल करना होता है. फाइल, ऑप्शंस, उसके बाद आके जाना है कस्टमाइज रिबन, फिर आपके पास है डेवलपर, लाइक दिस. ये 1993 से लेके अभी तक सारे एक्सेल में अवेलेबल है, बट इट इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट, तो आपको मैन्युअली जाके एनेबल करना पड़ेगा. एक बार हो गया, नाउ यू कैन रिकॉर्ड अ मैक्रो. रिकॉर्ड मतलब जो जो एक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे वो ही एक्शन वापस आप रिपीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे लिखा आइटम, मैंने लिखा ABC, मैंने लिखा 1 3 एंड 2, मैंने लिखा 6. ओके, वॉच दिस. मैं कुछ एक्शंस करूंगा बट पहले रिकॉर्ड करूंगा. तो मैंने किया रिकॉर्ड मैक्रो. तो मैंने इसको बोल्ड बनाया. यहां पे मैंने सम लिखा, बोल्ड किया, कलर चेंज किया, करेक्ट, और जूम लेवल को कम कर दिया. उसके बाद एक बॉर्डर बनाया और अलाइन किया इन द सेंटर, एंड आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. अब इमेजिन आपका ये काम रेपिटेटिवली आता है हर हफ्ते. ये कॉर्पोरेट में बहुत होता है क्योंकि सेम रिपोर्ट आपको हर हफ्ते बनाना है. अगर आप मार्केटिंग में है तो हर वीक का डेटा आएगा. फाइनेंस में है तो हर वीक का डेटा आएगा. HR में तो हर वीक का डेटा आएगा. एनी रोल दैट यू आर इन, ये फ्राइडे मंडे का जो सबमिशन होता है, मंथली सबमिशन होता है, कभी कभी इट इज अ डेली सबमिशन. दिस इज वेरी कॉमन. तो व्हाट विल आई डू, क्योंकि मुझे ये सेम एक्शन बार बार रिपीट करना है और मेरे वैल्यूज बदल गए. अब क्योंकि मैंने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया, आई कैन गो टू मैक्रोज एंड आई कैन select my macro and I can run my macro. So when I run it, what will happen? सारे के सारे actions repeat होंगे in 1 second like this. And this will help you save a lot of time. So if you notice,
सो इफ यू नोटिस हमारे डेवलपर में दिस मैक्रो हैज बीन रिकॉर्डेड लाइक दिस। अब देखिए आपको ये लिखना नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नहीं लिखता। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस वेरी हार्डकोर एनालिस्ट रोल्स तो आपको वीबीए सीखना पड़ेगा। बट सीखने का मतलब ये नहीं कि कोई बैठ के एक एक लाइन लिख रहा होता है, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी ऑनलाइन मिलता है। अब तो आपके पास जनरेटिव एआई है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू चैट जीपीटी, यू विल नोटिस everyone, I can just ask it to write a code. I will say VBA code to create a list of numbers. जो भी आपको लिखना है आप इसको बताएंगे, वो पूरा का पूरा कोड आपको लिख के देगा। एंड आपको जो स्पेसिफिकली बताना है वो भी बता सकते हैं, मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, कितने नंबर्स चाहिए। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ द कोड इज वर्किंग तो आप इसको बोल सकते हैं, प्लीज सी। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, करेक्ट। आई विल गो टू मरमेड एंड आई विल से कन्वर्ट टू अ डायग्राम। एंड इफ यू सी, वो आपके पूरे प्रोग्राम को लेके आपको समझा भी सकता है, और अगर आपको विजुलाइज करना है इट कैन ऑल्सो मेक अ डायग्राम फॉर यू। लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देयर इज सम एरर बट दैट्स ओके। ट्राई वन मोर टाइम। ब्यूटिफुल, राइट? सी, सो नाउ इट इज एक्सप्लेनिंग नॉट द कोड बट द प्रोसेस कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप कुछ नंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे, वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, एक लूप रन करेंगे जहां पे एक एक करके आप सारे नंबर्स को डालेंगे। दैट्स इट, इट्स सो नाइस, राइट? So perfect. That's what I wanted to cover for you. That's a quick recap. Obviously, recap का मतलब ये नहीं कि सारे टॉपिक्स उतने ही डिटेल में होगा। That's not the purpose. But मेन आपके लिए जानना ये जरूरी है what topics are most important to you. तो कोई भी आपसे कहेगा ना, you can tell them shortcut, data preparation, data cleaning, validation, functions, conditional statement, VLOOKUP, charts, pivot table, date function। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट? 90% काम आपका इन्हीं टॉपिक्स पे होगा। Perfect. That's what I wanted to cover for you. If you have any questions, you can ask. Swayam, that is a very specific question. How to make a portfolio in Excel? आपका question तो बहुत easy है, but उसका answer देना is not that easy, right? Because portfolio बनाने के लिए पहले you have to understand portfolio होता क्या है, किस चीज का portfolio बनाना है आपको, right? And ये सब तो आपको already ऑनलाइन हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स मिलेगा, राइट? सी, तो इसमें आई मतलब मेरा पॉइंट, सी माय जॉब इज नॉट टू टीच यू वन एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल मॉडल और एचआर मॉडल और मार्केटिंग सिमुलेशन। द पॉइंट इज यू हैव लर्न द फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ एक्सेल जो आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए हेल्प करेगा। अब जो आपको पोर्टफोलियो एक्चुअली में बनाना है, लेट्स से एन एक्सेल पोर्टफोलियो, तो यू कैन जस्ट गूगल इट एंड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोस दैट एक्सप्लेन हाउ टू डू इट। बट इसके लिए लाइक आई सेड इट्स नॉट अबाउट द फॉर्मूलाज, वो तो मैं आपको करा चुका हूं। जो जो आपको जरूरत है, देखिए इसमें भी समय फिर से यूज किया, बट पोर्टफोलियो बनता कैसे है, उसमें क्या मैट्रिक्स आते हैं, क्या वैल्यूज आते हैं, दैट इज अ फाइनेंस का टॉपिक। तो माई रिमेंबर वी आर डूइंग अ डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस वर्कशॉप। यहाँ पे आई डोंट थिंक इट वुड बी फेयर फॉर मी टू डिस्कस पोर्टफोलियो, बट इफ यू वांट टू लुक एट इट, आई हैव अ वीडियो ऑन small 1 hour video on corporate finance, right? This one.
which I cover for my corporate clients as well. ये वाला आप चाहें तो देख सकते हैं. इसमें पोर्टफोलियो तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स एन एंटायर फाइनेंशियल मॉडल जो मैंने पूरा स्क्रैच से बनाया. इफ यू नोटिस, and coincidentally I'm also wearing the same t-shirt today, but if you notice I'm making the entire model like this might help you, right? But मेरा तो एक ही वीडियो है. देयर आर मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑनलाइन जो आई थिंक आपको देखने चाहिए, right? Oh, I'm sorry, I was not sharing my screen. Anyway, I just share it one more time. Sorry. Let me share it once again. Yeah, I was sharing this with you. What I wanted to tell you was that portfolio, you can Google it. You will find many videos. मेरा ये वाला वीडियो है which you can watch. और आप जनरली भी गूगल सर्च करेंगे पोर्टफोलियो एक्सेल तो there are many videos that cover these topics. जैसे यहाँ पे if you notice he is also using some FS. So मैंने आपको एक्सेल के फीचर्स फॉर्मूला समझा दिया है. अब आपके ऊपर है कि यू हैव टू गो एंड वॉच आपके रेलेवेंट टॉपिक, फाइनेंस से एचआर है या मार्केटिंग है, right? So you let me know if you are not able to find the correct video. Then when we discuss, you can ask Talha also on Saturday. Otherwise, when we meet next weekend, आप मुझे बताना that sir I tried but was not able to find the correct video, and then I will find the video for. But मैं चाहता हूँ कि आप ढूंढ के देखें, एटलीस्ट कोशिश तो करें ढूंढने की. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Perfect. Any other question? Anyone? All good? Perfect. Thank you everyone for taking out the time. I hope you had a good recap. बाकी tomorrow I also have a session with I am Kozhikode. आपका 8 to 9 है, उसके बाद 9 to 10 मेरा उनके साथ है. उनके साथ भी I'm doing a recap session, right? Perfect. So कल Power BI visualization, उसके बाद Power Query DAX, and finally, right, on Tableau, right? Perfect. Thank you everyone. I'll share the recording with you later. Thank you.